Hello guys, in this video I will discuss 2020 All India toppers. He was secured All India rank first. Subham Kumar, he was secured All India rank first. Now, so in this video I will discuss this is your GS paper second. This is your GS paper second. In this paper, which section of society I will cover? Like this is your GS paper second. Now I will like such a dimensions would your polity first हो गया polity, then IR आ जाएगा, then आपका गवर्नेंस के बाद then सिक्योरिटी के बाद polity, तो and such a lot of current affair and the like amendment bill and some like Supreme Court decision. So in this video I will learn how to write such answers. Like this is your 17 number question and this is your A4 size paper. He was this copy was not original copy for Shubham Kumar. He was given Abhyas Test Series for Vision IS. He conducted All India rank overall India. He was the center Guwahati and Delhi, the different state of the center, and then he conducted the overall. So now the mostly people like aspirant who was given the test series. That's one guy like Subham Kumar who was also given the test series. So this is first you have read like a question multiple times, and then I will dictate to you. So let's read a question carefully. The question says that when comes to hunger in India face on the paradox. अगर मैं मतलब हंगर की बात करता हूँ तो इंडिया में ये फेस क्या है, पैराडॉक्स फेस कर डिस्कस आल्सो सजेशन वाई विच इज़ द कंसर्न कैन बी द एड्रेस. अब मुझे लाइक हंगर के कॉन्टेक्स्ट में कौन जारी करता है हंगर इंडेक्स, व्हाट आर द क्राइटेरिया शुड बी द डिटरमाइंड फॉर हंगर इंडेक्स and our neighborhood. This is India, and this is this is your India, and overall India. The also other country like Nepal, Bhutan, and some other country was also better than in India. So some reasons why India is so declined, hunger poor, global hunger index. तो some reasons and the criteria क्या है first. So that's when the first question, what is hunger? This is your keywords. What is hunger? Hunger, then face paradox पहले. तो अब हम पैराडॉक्स बताएंगे क्या ऑफ चैलेंजेस फेस करें. डिस्कस आल्सो सजेशन वाई द कंशन एड्रेस. अब क्या कंशन है, पहले हमें सजेशन देना फिर कंशन क्या है. तो मैं फर्स्ट मेरा कीवर्ड यू हैव लाइक दिस इज क्वेश्चन one time you have not understand, then you have read second times, then you will be understand. You have write according to the question what are the question saying, then you have write down, and then you have not beyond the question. The word limit is also remind your mind word 250 words में लिखना है. तो that's your first choice. तो when you have such a keywords like hunger हो गया, तो when you start hunger, then introduction you have should be prepare for 15 to 16 words, because 250 words then introduction you have 15 like a 75 words you have write down. Then your body, the maximum dimension of your body like hanger index का dimension दिखा सकते हो. तो and then conclusion में भी वो भी 70 या 50 words का होना चाहिए. Then and time taken like 5 to 7 minutes you have conclude your answer, then that's okay. So first I will read introduction. This copy you have learned lot of. So first hunger refer for the situation when situation इन्होंने द हंगर जो है वो when the situation regard. तो
So this is your hunger. Sorry for that. This is the right time. And then the hunger refer for when. First the question mark, when the enough food for not available. अब enough food ही नहीं available for all ever on us. So this is hunger. The most society who have not food. And the second nutrient, like the foods तो अवेलेबल हैं, फिर उनमें न्यूट्रेंट लाइक जितने भी न्यूट्रेंट हमारे पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट रिच एंड द फूड नॉट फॉर द अवेलेबल, लाइक दिस इज़ योर ऑर्गेनिक फॉर्म। फैन द ये हो गया कि हंगर क्या है, व्हाट आर द सेइंग हंगर। फिर इंडिया फेस हंगर बोथ काइंड ऑफ द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बता देंगे, फिर उसका क्राइटेरिया क्या है, हाउ विल डिटरमाइन। फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताना है तो हम कंपेयर कर देंगे अदर कंट्री से। तो GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करता है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू करता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे ग्राफ वाइज देखेंगे तो 2017 में हम आउट ऑफ जितनी भी कंट्री रही हैं तो हम 97 कंट्री में थे। फिर हमारा ग्राफ क्या हुआ, अप हुआ, 3 कंट्री आउट ऑफ डाउन। फिर इसके बाद थ्रू हम फिर जंप करें 3, फिर 2019 में हम 110 आए, फिर 2020 में हम 94 आ गए। तो दिस आर द ये डायग्राम आप शो कर सकते हो कि ईयर वाइज ईयर हाउ इंडिया परफॉर्म फॉर हंगर इंडेक्स। तो हमारे जैसे सच जैसे लाइक चाइना एंड नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार एंड पाकिस्तान आल्सो एंड बांग्लादेश, ही वाज द लाइक बेटर है इंडिया से। तो देन हंगर ग्लोबल वर्ल्ड पे पैराडॉक्स पेनेंटी क्या है। फिर हम लाइक थोड़ा बहुत आइडेंटिफिकेशन बता देंगे कि आइडेंटिफिकेशन में फॉर द हंगर एरियाज, लाइक स्टंटिंग बहुत है। स्टंटिंग होती है जैसे हाइट के अकॉर्डिंग जो हमारी लाइक ये दिस इज़ हाइट के अकॉर्डिंग हमारी वेट नहीं होता, तो इसको बोलते हैं स्टंटिंग इंडिया में बहुत है। फिर वो बताएगा लाइक स्टंटिंग हो गया हाइट अपॉन एज, तो रिफ़र फ्रॉम द लो वेट फॉर द गिवन एज। अब हमारे जो एज के अकॉर्डिंग जो हमारी हाइट होती वो हमारी है नहीं। फिर इंडिया में स्टंटिंग बता दिया इन्होंने कितने परसेंट है, ओवरऑल पॉपुलेशन का 38% है। तो दिस इज़ द कंसर्न है ये। फिर हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर द सेइंग। फिर वेस्टिंग फर्स्ट, अब एग्जामिनर को मान लो वेस्टिंग नहीं पता तो आपको बताना होगा वेस्टिंग क्या है। तो इसमें क्या होता है कि sorry for that, this is not fair for me and you also, and this is application cannot work, so I will proper less use for marker and like so now where is I am and this is vesting refer for the loss of weight for the given height। अब vesting क्या है, this is like you are overweighted, this is for you guys and this is your vesting। तो आपके जो रिफ़र फॉर लेस वेट गिवन हाइट, अब मे बी मेरी हाइट 8 फीट है, 7 फीट है, 6 फीट, तो हाइट के अकॉर्डिंग हमारा जो वेट होता है वो बहुत लो होता, तो इसको बोलते हैं वेस्टिंग। तो इंडिया में ये बहुत ज़्यादा है, वो 38% था, ये भी 36% है वेट फॉर द चिल्ड्रन, दिस आर द चिल्ड्रन। फिर मैली न्यूट्रिशन है, लेस है वेट फॉर द गिवन एज। अब मैली न्यूट्रिशन भी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी नॉट फुलफिल फॉर योर आवर फूड इन डेली लाइफ, यू हैव कंज्यूम एनीथिंग देन। तो लाइक इंडिया में है 20% मैली न्यूट्रिशन है, मैली न्यूट्रिशन में भी दो चिल्ड्रन लाइक रिक्वायर न्यूट्रिशन यू कैन नॉट फुलफिल। तो अब यहाँ पे हम नेशनल जो रिसेंटली हमारा मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हैव ये सर्वे निकालता है, तो अभी ये 5th सर्वे आ गया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 आ गया है, 2000 में आया था। डेट एंड रिलीज फॉर द फ्यू स्टेट सजेशन लाइक मेनी स्टेट लाइक वेस्टिंग एंड स्टैंटिंग इंक्रीजिंग। तो हमारा जो लाइक फ्यू स्टेट थे उनकी स्टैंटिंग और वेस्टिंग दोनों बढ़ गई। अब फिर इंडिया फोकस ऑन द हंगर फॉर डिफरेंट फ्रॉम, अब कहाँ पे also many children have now the become observer like overweightage हमें कम करना पड़ेगा। दिस इज़ द कंसर्न टू मैनी चिल्ड्रन हु हैव फेसिंग फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द हंगर।
तो ये दैट्स अ रीज़न है कि जो गवर्नमेंट की प्रॉपर स्कीम है उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। और करप्शन, दिस आर करप्शन लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई है, तो मे बी इनको हम रिड्यूस करेंगे। देन मूव ऑन अदर सेक्शन, व्हाट आर द थिंग, देन एड्रेस वाई, अब फिर हम इसको वे फॉरवर्ड भी देंगे। वे फॉर एड्रेस एंड हंगर, हंगर का क्या हमारा रीजंस है, तो हम बताएंगे फूड फोर्टिफिकेशन हो गया, राइस एंड बीन, साल्ट, मिल्क, फूड को हमें फोर्टिफिकेशन करना है। देन शिफ्ट आफ्टर टूवर्ड द न्यूट्रिशन, हमें जो न्यूट्रिशन फूड है लाइक गो टू मिलेट, दिस इज़ द गवर्नमेंट शुड आल्सो परफॉर्म की गो टू मिलेट्स, जो हमारे लाइक मिलेट्स हैं, लाइक बाजरा हो गया, जौ हो गया, तो दीज आर द मिलेट्स यू हैव आल्सो नोन कि मल्टी न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे मिलेट्स होते हैं। तो मिलेट्स, गो टू मिलेट, दिस इज स्कीम आवर गवर्नमेंट। फूड फोर्टिफिकेशन हो गया, फूड फोर्टिफिकेशन। अगर हम इनका वे सॉल्यूशन देंगे तो हम कहेंगे एड्रेस हंगर के लिए, हंगर के लिए अगर मुझे हंगर दूर करना है, व्हेन आई हैव लाइक रिड्यूस द हंगर इंडेक्स, तो व्हाट कैन द फूड फैकेज, फूड फूड फोर्टिफिकेशन लाएंगे, लाइक हो गया राइस, व्हीट एंड द साल्ट एंड मिल्क, ये हम सारी चीज़ उस पर ऐड करके शिफ्ट फॉर द टू वर्ड बाय लाइक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वाले सीलेस देंगे, लाइक हो गया हमारा न्यूट्रिशन फूड, लाइक हमारा ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। शिफ्टिंग फॉर लाइफ स्टाइल, लाइक हम लाइफ स्टाइल भी अपना चेंज करेंगे, दिस इज़ नॉट फॉर लॉस एंड द करप्शन एंड द ट्रांसफॉर्म। फिर न्यूट्रिशन लिटरेसी या न्यूट्रिशन लिटरेसी, लाइक पीपल शुड बी द मेड फॉर अवेयर अबाउट ऑफ द हेल्दी डीप, like ikigai, this is the ikigai, the Japan, the form of the how to live like 100 and 200 words, 120 average the Japan like मतलब average people in Japan like 100 and 110 he have also one। फिर देन इंडिया में क्या है कि अभी आप 67 है मेल की और 73 या 74 फीमेल की है, आप एवरेज इतना साल जी सकते हो। गवर्नमेंट शुड बी स्टेप लाइक ईट राइट टू, ये मोमेंट है एफसीआई का है, ये फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है, तो ये इसका मोमेंट है, यहाँ पे आप डाल सकते हो, दिस इज़ ये गुड एग्जांपल है इन्होंने अच्छा। फिर ये क्या है, लाइक इनिशिएटिव लेना चाहिए फॉर्म फॉर द ग्रोथ ड्राइव फॉर द क्रॉप, जो एमएसएमई में मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहिए, सच एज द क्रॉप, हमें जैसे हमारा बारले हो गया, बीट हो गया, तो ये हमारे इनको हम एमएसपी, ये मार्केट से क्योंकि अभी गायब हो जा रही हैं सारी जितने भी हैं। फिर इंडिजनाइजेशन फॉर द सीड एंड वैरायटी, अब लाइक लॉट ऑफ फूड्स इन लाइक रिसेंट टाइम यू हैव गो ऑन योर लाइक era of dada and dadis who have secured lot of foods in India like barley and wheat and some seeds, तो दिस इज़ वैरायटी। देन हमें प्रिजर्व करना चाहिए ऐसे फूड को, क्योंकि तभी गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है गो टू मिलेट, यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहिए। फिर अब हमारा ये बॉडी पार्ट हो गया, अब कंक्लूजन, हम ये बॉडी पार्ट में क्या करना है, डाइवर्सिटी देना है कि विच डायमेंशन से हम, फिर हम कंक्लूजन में आ जाएंगे। आल्सो यूज़ फॉर द बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी लाइक नैनो पार्टिकल मेक न्यूट्रिशन रिच क्रॉप्स, हमें बायोटेक्नोलॉजी यूज करके न्यूट्रिशन रिच हमें क्रॉप्स बनाना है, जिसमें से लाइक हमारे सभी मिनरल्स आ जाए, पोटेशियम एंड कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट एंड सब मिनरल्स एडेड हों, तो दिस आर द फ्रॉम। फिर अगर मैं 7th नंबर पे दूंगा कि इम्प्रूविंग योर सप्लाई एंड साइड रिफॉर्मेशन लाइक मिड डे मील हो गया, दिस इज स्कैम एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, दिस इज़ गुड फॉर इनफ है। देन शुड बी द प्रोवाइड मोर न्यूट्रिशन फूड, दिस इज़, तो यहाँ तक इन्होंने इंड कर दिया, ये कंक्लूजन है। दिस इज़ वुड बी यू हैव हेल्प इंडिया टू अचीव जीरो हंगर इंडेक्स, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्होंने गोल डाल दिया यहाँ पे कंक्लूज़न में कि इंडिया जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे 17 है, टारगेट हमें 189 अचीव करना है, 2030 तक हमें पूरा करना है। क्या करना है कि जीरो, हाँ इंडिया का टारगेट है कि जीरो हंगर इंडेक्स में हमें 2013 तक जीरो हंगर इंडेक्स कर देना, जीरो मतलब हंगर होना चाहिए इंडिया में एटलीस्ट, तो दिस इज़ कंक्लूज़न हो गया। आप जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो आप लर्न करते रहो उनको, तो आप कहीं पे भी डाल सकते हो। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड देन मूव ऑन योर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द सेकंड क्वेश्चन से, यू हैव वेल अवेयर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड देन मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन से इज दैट मनरेगा के बारे में,
You have also know this is the world largest scheme by Indian government. व्हाट इज़ द रोल वेज एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट आप जानते हो, फिर उनका रोल क्या है, एलिवेटिंग फॉर पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी के लिए अब गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो कर ही रही है। तो ये स्कीम है जो वेलफेयर करते हैं सोसाइटी का। तो अगर गवर्नमेंट का कोई स्कीम लॉन्च करती है, मे बी वो सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, वेलफेयर सबको होता है। तो देन द लाइक सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लॉट ऑफ फंड अवेलेबल इन लाइक टैक्स पेयर, you and me also, and then the all of tax can use the government like such a scheme, like you have given a old pension scheme and develop a bridge and road etc, and you have provide to health, education, family welfare and pension should be, and a lot of scheme launch. So this is the government use your like your taxpayer money. And how is the Manrega different from the yearly wage employment program in India? So this is like you have not understand the question. What is the लाइक योर वेज एम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट की वर्ड ये हो गया। फिर एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, एलिमिनेटिंग पॉवर्टी बताना है। फिर मनरेगा का रोल हमें बताना है, क्योंकि दिस इज़ वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिगेस्ट स्कीम है इन द वर्ल्ड। लाइक कोविड-19 में इसने बहुत सारा हेल्प किया था। मनरेगा क्या है कि आपको 120 डेज़ आपको एनी भी आप कहीं पे हो, आपको अपने गांव में ही आपका जिम्मेदारी है, आप वहाँ के सिटीजन हो, मे बी यू हैव गो टू योर विलेज प्रधान एंड देन आस्क 120 days you have given any rozgar. If you have unemployment, then should be your duty, and the your जो like अपर your विलेज प्रधान है उसकी भी ड्यूटी है। तो दिस इज ड्यूटी है। देन फिर मूव करना है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ ईयरली बेस्ड प्रोग्राम, अब डिफरेंट ईयरली बेस्ड बताना। तो फर्स्ट हमें पॉवर्टी बताना, वेज एम्प्लॉयमेंट बताना। पॉवर्टी इज़ द मल्टी डायमेंशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, आत्म सेंस दैट कि पॉवर्टी मल्टी डायमेंशन, फिर लैक ऑफ कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड थ्रू आउट द फुलफिली। ठीक है, असली मेजरमेंट पॉवर्टी मॉनिटरिंग टर्म्स ऑफ द एग्जाम्पल एंड द तेंदुलकर कमेटी आई थी। ही हैज़ सेट द इनकम लाइक द तेंदुलकर कमेटी आई थी, तो उन्होंने वेज के लिए अलग अलग वेजेस डिसाइड किए कि लाइक तेंदुलकर कमेटी केम फिर तो उन्होंने डिसाइड किया कि $1 शुड बी द इनफ। फिर अदर कमेटी आई, उन्होंने बोला कैलोरी की बेसिस से होना चाहिए। तो रूरल एरियाज़ एंड अर्बन एरियाज़, तो दिस इज़ लाइक रूरल एरिया में 2400 बोले, फिर अर्बन एरियाज़ में उन्होंने थोड़ा कम कर दिया क्योंकि वहाँ के लोग कम काम करते हैं। तो मोर देन 22% ऑफ पीपल ऑफ इंडियन पुअर, तो ये एवरेज था तो उस समय। तो रोल ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट एंड लाइक एलिवेशन फॉर द पॉवर्टी। तो फर्स्ट, वेज एम्प्लॉयमेंट लीड टू द सर्टन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वेज एम्प्लॉयमेंट क्या है कि सर्टन डेट कुछ दिन आपको मनी अर्न एंड विच इज़ कैन बी द यूज़ ऑफ द मीट टू द बेसिक नीड्स। अब थोड़े दिन के लिए, सर्टन दिन के लिए, फिर आप जो बेसिक नीड्स है वो आप अचीवमेंट कर सकते हैं। इंस्टेक्ट फॉर द रिवेरिंग and solely for the agriculture, like agriculture, and now the people are the getting paid for the each like wage crop for and their work, and wage employment information payment against to the waiting, don't worry, and the employment against to the waiting of the crops and fulfill. Then wage employment for the certain, unlike for the agriculture self employment and no guarantee. Then you have also said that in your question मनरेगा you should be the depriving the whip। तो मनरेगा का आप बता दें, रेफरेंस फ्रॉम महात्मा गांधी रूरल नेशनल रूरल एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये है। एक्ट विल बी डिफरेंट फॉर द प्रोग्राम्स क्या है। फिर ये गारंटी क्या करती है, 100 डेज, मतलब 100 दिन तो आपको काम देगी ही देगी। सर्टन एंड द गेटिंग पेड फॉर दैट 100 डेज इवन ही हैज़ नो वर्क टू डू। ठीक है, एंड द अवेलेबल, अब क्या है कि अगर 100 डे हमें दे रही है गवर्नमेंट शुड भी प्रिपेयर, बहुत सारा फंडिंग भी आता है मनरेगा में, ऐसा नहीं है। फिर देन लाइक अभी क्या है कि देर इज़ नो वर्क फॉर डू, तो गवर्नमेंट को शुड भी आपको ढूंढना चाहिए ना कि क्या है गांव में, क्या कौन सा काम हो सकता है। तो कह रहे वहाँ पे कोई वर्क नहीं है, अवेलेबल फॉर ऑल। अब ये सभी के लिए होना चाहिए, मैंडेटरी होनी चाहिए, पीपल्स हो। तो अभी जो रिपोर्ट आई थी कि मनरेगा में मोस्टली जो फीमेल वर्कर बहुत ज़्यादा है, मेल वर्कर की ज़्यादा।
तो अवेलेबल फॉर ऑल, ये सभी के लिए होना चाहिए। पीपल इन रूरल एरियाज एंड इंस्पेक्टेड फॉर इनकम फॉर पीपल लाइक लॉस चेंज फॉर वैक्सीनेशन। फिर अनस्किल्ड वर्कर, इसमें जो मनरेगा का सबसे बड़ा बेनिफिट है, लाइक अनस्किल्ड वर्कर आते हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं है, यू हैव नॉट and also get work. Now the certain change for the मनरेगा 2.0 for has learn been made like अब हमें मनरेगा 2.0 आ गई, मतलब उसका अपडेटेड वर्जन। फिर क्या हमें जो हमारे वर्कर्स हैं उनको हमें स्किलिंग सिखानी चाहिए। क्यों सी, जब वो ट्रेंड होंगे तो वेल एजुकेशन एंड वेल पेड होंगे, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, तो ठीक है। देन फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देन द स्किलिंग ऑफ वर्कर्स, ठीक है, मनरेगा 2.0 आना चाहिए। एंड डायरेक्ट बेनिफिट डी, हाँ ये तो बहुत सही है। अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपका डीबीटी सीधे डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफ़र योर अकाउंट में आना चाहिए। अब बैंक लाइक जो है मेडिटेटर होते हैं वो आपका खाए ना। एंड फिर लाइक जियो ट्रैपिंग एंड एक्सेस, ठीक है, ये भी है कि आप जियो ट्रैपिंग कर सकते हो। एंड आल्सो लाइक वुमेन एंड बेनिफिशियल फॉर द greater than 50% and also action for employment too, and further the employment proceeded for the individual basis and not for the family basis, which is not for the travel for early and the largest employment scheme in the world। मैंने फर्स्ट टाइम ही बोला था कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्कीम है जो गवर्नमेंट के क्या की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर द इंक्रीजिंग ड्यू टू द डेवलपमेंटल फॉर इफेक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक ऑन द एम्प्लॉयमेंट। ये कोविड-19 में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो दिस इज क्वेश्चन फॉर एंड देन मूव ऑन योर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट what question says that China aggressive recent and the present for the only challenge of India, but is the opponent for threatening itself for the international for domestically discuss। कि हाल के दिनों में चीन आक्रामकता के लिए चुनौती बड़ी संख्या में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय, तो हमें बताना कि हाउ टू सिक्योर योर बॉर्डर फॉर चाइना। केवल चुनौती हैं जो हमारे चैलेंज हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने शक्ति बनाने का अवसर भी प्रदान करती। तो ठीक है, अगर हमारा कोई कंट्री हमारा इनमी है, तो अगर हम उससे चैलेंजेस लाइक हमारा कोई कंट्री में है तो हमें उससे हमें थ्रेट भी पहुंचता है, हम और भी प्रिपेयर हो जाते हैं, शुड भी। तो हम अगर यहाँ पे चाइना के टर्म्स की बात करते हैं, इन्होंने वर्ल्ड मैप दिखा दिया है। मैं भी थोड़ा सा ब्रीफ, सॉरी फॉर दैट। दिस इज़ चाइना, यू हैव आल्सो सो दैट अब मैप आपका सूट भी होना चाहिए बिल्कुल मिडिल में। तो ठीक है, पहले मैं चाइना का एग्रेशन बता दूंगा, वाई चाइना इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो चाइना एग्रेशन, हाँ ठीक है कोई ना मैं भी समझता हूँ। आई शुड बी लर्न देन आई विल, हाँ ठीक है। चाइना एग्रेशन इज़ द रिसेंट लाइन फॉर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे था। लेट मीन द लाइक डोमिनेंस सच एज द लाइक साउथ चाइना सी, वो तो हमारा इशू ही नहीं साउथ चाइना सी, दिस इज साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी एंड द लैंड बॉर्डर लद्दाख, दिस इज लद्दाख रीजन्स एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड पर भूटान एंड डिप्लोमेसी। फिर हम यहाँ पे हम मैप बनाएंगे और ये हमारा CPCE रोड चली जाएगी और चाइना ये चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है। CPC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये वाला। और जो हमारा ये वाला हमारा ये हमारा ईस्टर्न हो डोकलाम हो गया, यहाँ पे ये सिक्किम का पार्ट है, नेपाल के जॉइंट सेक्शन में लद्दाख हो गया। और ये हमारा ईस्टर्न सेक्टर हो गया, ईस्टर्न सेक्टर ये होगा वेस्टर्न, ये मिडिल सेक्टर। हमारे जो डिस्प्यूट है ये 3 ही जगह है, तो ये 3 जगह हैं। और आधा जो चाइना का डिस्प्यूट लाइक हांगकांग से है, ताइवान से है, जापान से है, एग्रेशन मोड है, डोकलाम हो गया, इधर हमारा फ्रंट पे आ गया। तो दीज आर द कंसर्न है। श्रीलंका से भी है, हम्बल टोटा बंदरगाह 100 ईयर के लीव्स के लिए ले लिया, लैंड एंड मैनी टाइम बाउंड्री। तो दिस इज डिस्प्यूट है चाइना से। अब हम कैसे इसको रिसॉल्व करते हैं, तो दिस इज़ आवर कंसर्न। और यहाँ से एक आती है तापी, तुर्कमेनिस्तान, तापी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, दिस इज़ ये रीजन से। मूव ऑन अदर सेक्शन। चैलेंजेस क्या हैं, अब हम देख लेते हैं कि मान लो कोई हमारा कंट्री नेबरहुड है, ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है, तो क्या करना है। चैलेंजेस हम देख लेते हैं कि कंट्री क्या क्या है बदतमीजी, तो उससे हम स्ट्रांग ही होते हैं। अब हम देख लेते हैं चैलेंजेस क्या आ रहे हैं।
तो चैलेंजेस आएंगे लैंड बॉर्डर सिक्योरिटी, हमें अपनी लैंड बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। लाइक हम क्यों नहीं अडाप्ट करते, लाइक कनाडा हो गया, चाइना हो गया, फंड तो बहुत है हमारे पास, हमें जितना हम डिफेंस में अपना जो लाइक बजट का यूज़ करते हैं उतना हम क्यों नहीं कोई वॉल ही बनवा दो अपने बाउंड्री पे, चाइना की वॉल हो गया। अभी ट्रम्प आए, ट्रम्प अपने कंट्री पे कनाडा के साइड से वॉल बना, तो लैंड बॉर्डर सिक्योरिटी है। रिसेंट एग्रेशन फॉर द ट्यांगशू लेक जो है हमारा, ये लद्दाख रीजन में है, ये हो गया। फिर मैरी टाइम हो गया, साउथ चाइना सी हो गया, डिप्लोमेसी एंड वियतनाम ऑयल हो गया, एग्रेशन लाइक इंडिया ओशन हो गया, शिप हैव बीन लॉन्च फॉर इंडियन एंड बे ऑफ बंगाल हो गया। फिर इंक्रीजिंग ऑफ इंडिया एंड स्टिंग ऑफ पेल्स, हम स्टिंग ऑफ पल्स एंड स्टेजिटी फॉर हमन टोटा बंद का साउथ, ये 100 ईयर के आप ले लिया। देन द रिलेशन बिटवीन द अदर कंट्री लाइक नेपाल एंड द प्ले फॉर द चाइना, मतलब जो अदर कंट्री हमारी नेबरहुड है वो क्या कर रही है उसके, लाइक कहते नहीं हैं जो आपका पड़ोसी नेबरहुड होता है वो आपका इनमी ही होता है। और चाइना का जो पड़ोसी है ताइवान है, फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान है, मंगोलिया हो गया, दीज आर द इंडिया फ्रेंड्स हो गए। तो आपके इनमी जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते। मे बी जो नेबरहुड कंट्री आप किसी को भी देख लो। फिर अपॉर्चुनिटी क्या है एंड डोमेस्टिक क्या है, मोर रजिस्टर्ड एम्प्लॉयमेंट है। फिर थ्रेड फॉर इंडियन मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, हमें चाइना को बाइकआउट कर देना चाहिए। फिर देन रिलेशन इंडियन फॉर बॉर्डर, फिर रेजिडेंस फॉर डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारी वायलेशन हो जा रही है। देन अपॉर्चुनिटी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, यूएसए। अपॉर्चुनिटी में हम बता दें कि इंडिया पैसिफिक रिंग पे वो कर ले, क्वाड पे साथ ज़्यादा वो करे, हमें तो करे क्वाड्स, लाइक क्वाड्स तो आप जानते ही होंगे, क्वाड क्वाड आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और इंडिया, इस कंट्री एंड यूएसए लीडरशिप होने, जापान, साउथ चाइना सी में हमारा वो रीजन्स होने चाहिए। ग्रेटेस्ट हेल्प ऑफ इंडियन एंड द मोर ऑफ द बेस्ट एफडीआई हमें प्राप्त होता है। चाइना फर्स्ट, चाइना सी, चाइना फर्स्ट डिप्लोमेसी होना चाहिए। देन दैट दिस आर द कंसर्न एंड द मोर ओवर द कंट्री विद द वर्ल्ड, इंडिया है द बैलेंसिंग पावर, इंडिया के पास बैलेंसिंग पावर होना चाहिए कि ज़्यादा एग्रेसिव मोड में नहीं चलने, क्योंकि दोनों डेवलप कंट्री हैं और दोनों अभी ग्रोथ के स्ट्रक्चर में हैं, तो लॉस होगा दोनों का, नॉट अ लॉस फॉर द योर इकोनॉमिक बेसिस आल्सो, like you have also seen the lot of war like Ukraine and Russia, and also Israel and Palestine, Gaza, Egypt, Jordan, Syria, Lebanon, these are countries you have also known. Then lot of damage and human, सबसे जो लॉस होता है वो ह्यूमन्स का होता है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं हो पाता। दैट्स ओके। देन मूव ऑन योर 20 क्वेश्चन। द ट्रेड एंड कंट्रोवर्सी होल्ड ऑफ द इंडियन बेटर इन द नेबरहुड एग्जामिन द अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस साउथ चाइना सी, साउथ एशिया में बताना, सॉरी साउथ एशिया हो गया तो हम ये कंट्री बता देंगे। साउथ एशिया मालदीव, श्रीलंका, इनका मैप बहुत अच्छा था तो हम ये सीख सकते हैं इनसे। और देन चैलेंजेस क्या है हम बता देंगे, चाइना एंगल, पाकिस्तान एंड इंडिया से ट्रेड फॉर डिफिसिट एंड ये बता देंगे। फिर ये उन्हें मल्टी डायमेंशन बता देंगे। जर्नलिज्म एंड एग्जाम्पल शुड बी योर अपॉर्चुनिटी क्या है, तो दिस आर कंसर्न योर दिस इज देन नाउ इट्स ओके एंड this start now this question, what should be right, what should be not right. तो लाइट guys, you have read down the question twice. ट्रेड फर्स्ट, यू ट्रेड, तो हम ट्रेड के बारे में बताया। कनेक्टिविटी होल्ड की इंडिया, अब ट्रेड को जो इंडिया है जो की होल्ड कर लिया। बेटर नेवर एन एग्जामिन द अपॉर्चुनिटी क्या है ट्रेड होल्ड करने के लिए, चैलेंज क्या है। जैसे हमारी दीज आर ये कंट्री हैं सारी, कौन सी, साउथ चाइना सी वाली, साउथ एशिया में ये हमारी कंट्री जो आ जाती हैं इधर वाली, लाइक फिलीपींस, मलेशिया, कम्बोडिया, नेपाल, तो ये वाली कंट्री को अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है, हमारे पास चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, तो ये हमें बताना है। तो हम बता देंगे इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री हु द साउथ एशिया कंट्री इन साउथ एशिया। रिसेंट रिपोर्ट फॉर द वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च की कि द गल्फ ऑफ द फुल ऑफ प्रोफेशन फॉर द ट्रेड एंड साउथ चाइना सी, तो हम रीजनल बता देंगे ट्रेड जस्ट 5%, द टोटल साउथ एशिया ट्रेड
अपॉर्चुनिटी बता देंगे पहले इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी क्या कनेक्टिविटी इंडिया हैज़ वेल पोजीशन में है, क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों साइड से हमारे बे बंगाल है, अरेबियन सी है, कनेक्टेड टू नेबरहुड फॉर लाइक कंट्री लाइक साउथ एशिया विल बी लीड फॉर द रीजनल इंटरफेयर, देन द ट्रेड है एंड इनहेंस फॉर द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी है रीजन में। फिर हम बता देंगे कि वर्ल्ड लिविंग एफिशिएंसी मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास, चीप लेबर भी हमारे पास। तो एग्जांपल में इंडिया है द एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हमारे पास रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी अब हमारी चाइना पे है, एंड द इम्पोर्टेड टेक्सटाइल हो गया, लेदर हो गया, और लाइक अब हम बता देंगे कि टूरिज़्म में हो गया, देन शेयर ऑफ द कल्चर हिस्टोरिकल। टूरिज़्म में हम बता देंगे कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंस है, क्या है शेयर कल्चरल हम दे देंगे, हिस्टोरिकल रिलीजियस एंड वुड बी द कंसर्न फॉर द कंट्री। टूरिज़्म एंड पिलग्रिम्स हो गया। फिर हम यहाँ पे मैप के थ्रू दिखा देंगे कि हम साउथ चाइना साइड साउथ एशिया बोल किसे रहे हैं, तो दिस इज़ द लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, दिस आर द फिर अंडमान निकोबार, श्रीलंका, ये हम मैप के थ्रू दिखा दिए कि साउथ। फिर हम बता दें कंट्रीब्यूशन साउथ एशिया एंड मालदीव, भूटान, नेपाल, इधर पे जो मॉरिशस आ गया, सेशल्स आ गया, तो दीज आर कंट्री। फिर हम बता देंगे म्यूटल, हमें म्यूटल ट्रस्ट भी होना चाहिए। वर्ल्ड इनहेंस बेनिफिट फॉर पीपल लिविंग आर द बॉर्डर एरिया एंड थ्रू आउट द ट्रेड एंड डिक्रीजिंग टू ट्रैवल टाइम्स, ठीक है, डिक्रीजिंग टू ट्रैवल टाइम, इंडिया वाटर ट्रांसपोर्ट पर कंट्री। फिर हम अपॉर्चुनिटी तो बता दें क्या क्या अपॉर्चुनिटी, फिर चैलेंजेस बता देंगे अब क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इंडिया को ये सब करने के लिए। तो ऑल कंट्री आर द मच भी इन द सिमिलर देन द इंडिया, सो आर द, तो फिर अब सेकेंड द लाइक मेनी कंट्री लाइक नेपाल हैज़ राइज फॉर द कंसर्न इंडिया ड्यू टू द बिग ब्रदर। अब नेपाल भी इंडिया को बिग ब्रदर मान द एटीट्यूड एंड विच द नेपाल एंड क्लेम। तो दिस आर एजुकेशन एंड लाइक नेपाल हो गया, नेपाल काला पानी लिम्पोधोरी, दिस आर डिस्प्यूटेड एरिया इंडिया एंड नेपाल बिटवीन, एंड चाइना, दिस इज आल्सो नेपाल विज the enemy and front for the relation for China and China angle. China many country like Bangladesh, Nepal, Bhutan. These are country can be China captured by India and then many country like play for China area. ठीक है, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान तो ऑलवेज अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, लाइक टेररिज्म एंड स्पेंसर फॉर बेकेट चैलेंजेस। फिर इंक्रीज इंसर्जेंसी आ जाएगी, लाइक बहुत सारे ग्रुप है नियर द बॉर्डर एरियाज, इधर से हमारा लाइक अफगानिस्तान, नेपाल एंड अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड दिस आर द कंसर्न है, वहाँ से ड्रग्स ट्रैपिंग, यहाँ से ह्यूमन ट्रैपिंग नॉर्थ ईस्ट से, तो बहुत सारे द ट्रेड डिफिसिट हो जा रहा है। लाइक हम कंट्री को अपना एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो इम्पोर्ट कम पर तो ट्रेड से वो ट्रेड से। एग्जाम्पल बांग्लादेश नियरली फॉर 5 ट्रिलियन, हमारा 5 बिलियन है। एंड अब ये सारे जो हो गए चैलेंजेस क्या है, कंसर्न क्या है, अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि अब सोल्यूशन क्या है, इसका क्या करें। वी नीड मोर इफ़र्ट फॉर द बेटर, अब हमें ज़्यादा ज़रूरत है एफ़र्ट डालने की, अब बेटर करना चाहिए। इंटरग्रेटेड फॉर द लाइक जियोग्राफिकली एंड कंट्री लाइक रीजन्स लाइक सार्क हो गया, साउथ एशिया एसोसिएशन एंड रीजनल कोऑपरेशन, फिर BBI हो गया, बांग्लादेश ये कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। फिर रिसेंट मीटिंग एंड इंडिया एंड बांग्लादेश कनेक्टिंग बाय प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पॉइंट होने चाहिए, बॉर्डर हमारा जो थ्रेट है वो कम करना चाहिए, एंड स्टेप टू राइट टू डिक्रेशन होना चाहिए। तो दिस आर कंसर्न है, दिस चैलेंज एंड पीपल टू पीपल बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक दूसरे को कल्चर सीखना चाहिए, दिस आर कंसर्न एंड द चैलेंजेस। तो दिस इज़ द लाइक 70 to 19 क्वेश्चन I have covered, then the remaining question I will also cover. So this is done now, toppers you have listened lot of, then that, so thank you for watching and helpful for me and you also, thank you guys.